Good morning, students. How are you? Fine. Today we will start our next chapter, chapter number 10, visualizing shapes. You have already studied about different type of shapes. One-dimensional shape, two-dimensional shape, three-dimensional shape. How can we differentiate these type of the shapes? One-dimensional shape. Let us look at this. This is the line, and this line is known as the one-dimensional shape. A point, a line. This is one-dimensional shape, a line. Now let us look at the two-dimensional shape. A square, a rectangle. These are known as the two-dimensional shape. This is a rectangle, and now this is considered to be a two-dimensional shape. Now, what is the three-dimensional shape? A cuboid is considered to be the three-dimensional shape. These are just one examples of each. Now, what do you mean this dimension? The dimension means their number of sides. So, in the one dimensional, an object has only length. It means इसके पास केवल एक dimension है. In the two dimension, an object has two different. It means one is length and another one is breadth. And in the case of 3D, object has three different dimensions: length, breadth, and height or depth. You can say depth also. So, अगर हमारे पास कोई ऐसी इमेज है जिसकी केवल एक ही डायमेंशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऐसी डायग्राम हमारे पास, शेप ऐसी है हमारे पास जिसके पास टू डायमेंशंस है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, तो वो क्या हो जाएगी? 2D ऑब्जेक्ट. और जिसके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें हैं, इज नोन एज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि whether it is two dimensional, one dimensional or three dimensional. So generally we can represent one dimensional and two dimensional on the paper easily. We can represent one dimensional and two dimensional on the paper easily. But a 3D ऑब्जेक्ट, अगर एक 3D ऑब्जेक्ट को पेपर पर रिप्रेजेंट करें, तो इट इज नॉट ए इजी टास्क. So it is becomes not very convenient for representing the on the paper. Now look at different type of shapes. Now we have different type of shapes. Now you have to give the name of the shape and whether they are 2D shape or 3D shape. Now explain the type and give their name. So ये शेप है स्क्वायर की, इसका नाम कैसा होगा? स्क्वायर. And it is a 2D shape. Similarly, what is this? This is a triangle and it is also a 2D shape. Next one, it is the cone and it is a 3D shape. आपको इन सभी शेप को याद रखना है और इनके अलावा भी बहुत ज्यादा शेप्स है आपके पास, आपके बुक में सभी हर शेप को आपको
स्टडी करना है कि किस शेप का नाम क्या है, और वो 2D इमेज है या 3D इमेज है। अब इसमें क्या होगा, इसका बेस है तो यहाँ की कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग है, कुछ लेंथ, कुछ विड्थ, कुछ हाइट, तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ फॉलो कर रहा है, तो इट मींस इट इज आल्सो ए 3D इमेज। ये भी क्या है, एक सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। दिस इज द सर्कल एंड इट इज ऑफ 2D टाइप होगा इसका। दिस इज द स्फीयर एंड इट इज ऑफ 3D टाइप। And what is this? This is cuboid and this is also of 3D type. Now next one is the view of a 3D shape. 2D शेप को तो हम पेपर पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक 3D शेप को हम पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करें, किस तरह से हम देख सकते हैं 3D इमेज को। तो हमारे पास होंगे 3D फ्रंट व्यू, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन। आल्सो नोन एज एलिवेशन। नेक्स्ट वन इज टॉप व्यू, इसे बोलते हैं प्लान। इस अनदर नेम इज प्लान। फ्रंट व्यू का अनदर नेम है एलिवेशन। एंड देन नेक्स्ट वन इज द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। आप एक कोई ऑब्जेक्ट चूज कीजिए, look at this cuboid, assume this is a cuboid। इस cuboid का हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है। हाउ दिस ऑब्जेक्ट लुक फ्रॉम द फ्रंट व्यू, सो विच वन इज द फ्रंट व्यू, इसे हम बोलेंगे फ्रंट व्यू। इसे हम बोलेंगे साइड व्यू। And this one is known as the top view। क्लियर? तो फ्रंट व्यू में ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, यहां से हमें स्क्वायर टाइप का लग रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू कैसा होगा, एक स्क्वायर टाइप का। क्लियर? अब इसके साइड से हमें कैसे ऑब्जेक्ट लग रही है, कुछ इस तरह से, तो दिस विल बिकम्स द साइड व्यू। नेक्स्ट, हाउ द ऑब्जेक्ट यू लुक फ्रॉम द टॉप व्यू। टॉप व्यू से हमें ऑब्जेक्ट कैसी लग रही है, दिस इज द टॉप व्यू। तो सिमिलरली हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना सकते हैं। सपोज कीजिए हम इसका थोड़ा सा लेंथ चेंज कर देते हैं, सो दैट दीज टू कैन बी डिफरेंशिएट, बिकॉज इसकी ये विड्थ अलग होगी और इसकी ये विड्थ इसकी जितनी होगी, सो यू कैन मेक इट आउट। जो भी आपको चेंज लगे उस हिसाब से आप बनाइए, जो भी मेजरमेंट हमें गिवन हो उस हिसाब से हमें बनाना है। बट फ्रंट व्यू होगा जिसे हम एलिवेशन बोलते हैं, जो हम इधर से देखते हैं, सामने से देखते हैं। जो साइड से देखेंगे वो हमारा क्या होगा, साइड व्यू। और जो ऊपर से देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, क्या बनेगा हमारे पास, इट बिकम्स द टॉप व्यू। लुक अनदर एग्जांपल। हमारे पास कोई हट है,
इसका साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमें बनाना है। So how would it look like from the front view? Side view and from the top view. Clear? तो each and every view का हमें एक्सप्लेन करना है। इसका फ्रंट व्यू बनाइए आप, तो द फ्रंट व्यू कैसे लिखिएगा ये? इसका फ्रंट व्यू क्या होगा? It would look like this only. इसका साइड व्यू क्या होगा? इसका साइड व्यू होगा जस्ट लाइक सिंपल एक रेक्टेंगल, बिकॉज यहां से शीट इसके कवर करेगी एक लाइन और, एंड देन this line will not be visible, so this will look like from the side view. This is the shed height, this portion, जो हमारा ये पोर्शन है वो है यहाँ पर। So this will look like that. What would be the top view? Top view क्या होगा हमारे पास? अब टॉप से जो होगा एक लाइन होगी बीच में, टॉप से हमारे पास एक लाइन दिखेगी, not be exactly, it would be like this, a little bit inside, inner side, a little bit inner side from all sides. Now it becomes look like a shed. So this will become the top view. Only the cover or the top of the hut, इसके जो ऊपर का हिस्सा है बस हमें वही दिखाई देगा। So every view are different. So this is just a 3D object. Okay, there are various other examples also. Let us take another example. इस तरह की कोई शेप हमारे पास गिवन है जिसमें ये क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब और चार क्यूब्स को मिलाकर के कुछ ऐसी शेप बनाई गई है, और इसे हमें 3D में इसका टॉप, फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू होगा हमारा यहां से, टॉप व्यू होगा हमारा इधर से ऊपर से, और साइड व्यू होगा हमारा इधर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमें एक ये स्क्वायर दिखाई देगा और एक ये स्क्वायर, और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू में हमारे पास ओनली दो स्क्वायर्स बन जाएंगे लाइक दिस वन। जबकि टॉप से अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4, इन चारों पे अगर हम ध्यान दें तो हमें टॉप से क्या दिखेंगे? ऑल फोर्स एज इट इज दिखाई देंगे। तो टॉप व्यू कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा।
क्लियर? इसको भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज द साइड व्यू। अब साइड व्यू में कैसा दिखेगा कि साइड साइड हम देखेंगे तो 1 2 एंड 3 फेसेस हमें दिखाई देंगे। साइड से हमें कितने स्क्वायर्स दिखाई देंगे? 3 स्क्वायर्स। तो इस तरह के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती है जो आपको गिवन हो, और आपको उनका साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना होगा। So overall we can say every picture, every object has their perspectives. तो हमारे पास उस perspective के हिसाब से हम इनकी object की shapes बनाएंगे। Now next one is the map. What do you mean by the map? A map is used to locate a point with respect to अदर ऑब्जेक्ट और अदर पॉइंट। हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एक मैप के अंदर लोकेट करते हैं, पोजीशन करते हैं, तो वो क्या होता है? मैप। अब मैप और पिक्चर भी यही है कि जो उनका पर्सपेक्टिव पिक्चर में होता है या मैप में नहीं होता है, हमें जस्ट उसको शेप देना होता है कि इसका मैप कैसे जाना है। हमें ए से बी तक जाना है, and we have to move this side and then towards north and then towards east। 1 किलोमीटर हम नॉर्थ में गए, 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर ईस्ट में गए, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गए, देन 3 किलोमीटर वहां से ईस्ट में गए अगेन, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो इस तरह की जो मैपिंग होगी हमें क्या कहलाएगी? मैप। हमें घर से सपोज कीजिए हमारा हाउस है, होम है, और ये हमारा क्या है? स्कूल है। तो हमें घर से स्कूल जाना है, तो हमें मैप कैसे बनाएंगे? जस्ट लाइक दिस इज नॉट द मैप। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हमें मैप में रिप्रेजेंट करना होता है। सो द मैप इज यूज्ड टू सिंबलाइज द डिफरेंट लैंडमार्क्स। तो हम आपको कह सकते हैं कि जो मैप है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करता है। दिस इज नॉन एज द मैप। सो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को करेक्टली प्लेस करेगा। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है डायरेक्शन। तो जो मैप होगा, मैप के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनानी जरूरी है। ये जो एरो हेड है ये नॉर्थ की तरफ है, इट मींस इसके इस साइड में नॉर्थ है। अगर इस साइड में नॉर्थ है तो इस साइड में क्या होगी? साउथ। इस साइड में नॉर्थ, इस साइड में साउथ, तो इस साइड में आएगी ईस्ट, एंड अनदर साइड क्या होगी? वेस्ट। तो ये एरो का निशान गिवन जरूर होगा मैप के अंदर, टू इंडिकेट इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव। क्लियर? नाउ ए मैप इज कन्वर्टेड, जो हमारे किलोमीटर्स की डिस्टेंस है उनको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। इट मींस इन द सम रेशियो और प्रोपोर्शन में से कन्वर्ट किया जाता है। सो नाउ वी कैन मैनेज ए मैप ऑफ द वेरी बिग कंट्री इनटू ए पेपर। जब हम एक बड़ी से बड़ी कंट्री, बड़ी से बड़ी पूरे वर्ल्ड का भी मैप हम एक पेपर पे बना सकते हैं। बाय विच? बाय दिस कन्वर्जन, कि किलोमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना। ओके, सो नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस द पॉलीहेड्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलीहेड्रॉन? A polyhedron consists of is a 3D image which consists of various polygons. So different polygon की यूज लेकर के हम क्या बनाएंगे? Polyhedron. Clear? Just look at this example. Now, this is the polyhedron. अब इस polyhedron में क्या है? डिफरेंट टाइप के हमने पॉलीगॉन्स यूज किए हैं। ये एक अपने आप में पॉलीगन है, ये भी अपने आप में एक पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, इधर की शेप पॉलीगन है, ये शेप भी क्या है? पॉलीगन है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलीगन्स व्हिच आर एम्बेडेड टू मेक ए न्यू
shape known as the polyhedron. तो polyhedron में हम क्या यूज करेंगे? Different type of polygons. So we can say, how can we define polyhedron? Polyhedron को define करने के लिए आप लिखोगे a polyhedron is a 3D image, a 3D shape or image made up of different type of polygons. So some important points for the polyhedron is the first one is the face. What do you mean by the faces or face of a polyhedron? The polygon, जो ये polygon एक हमने बनाया, clear? Forming a polyhedron जो polyhedron बनाने के लिए जो हमने different ये polygons जो हमने बनाए, these polygons are known as faces. Are called faces. तो faces हमारे पास क्या हो गए? जो different type के हमने polygons इसको बनाने में यूज किए, each and every individual are known as the faces. Now next one is the edge. The line segment, जो ये line segment है, is known as the face. The line segment where the face of the polyhedron meet. जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट इज नोन एज द एज. The line segment where the faces of the polyhedron meet is called edge. तो आपको पता लगा what is the face, what is the edge. तो फेस पर जितने भी हमने पॉलीगन यूज किए वो सब हमारे क्या है? फेसेस. और जो ये लाइन सेगमेंट है जो हमारे एक पॉलीगन बनाने में काम आते हैं, जो डिफरेंट पॉलीगन्स को जोड़ती है, इज नॉन एज द एज. नेक्स्ट वन इज द वर्टेक्स. अब वर्टेक्स जितने भी ये कॉर्नर्स हैं, these corners are known as the vertex. You may say the corners where the edge of the polygon intersect is known as the vertex. So you may also say the edge. Edge तो हम कह सकते हैं कि दो vertex के बीच में जो common line होती है, line segment जो common line segment होती है, वो होती है हमारे पास edge. So but इसके बीच में ये वाली भी आ सकती है, तो हमें बाहर वाली लेनी होती है, outer वाली. So these are known as the faces, edge and the vertex. Now by the Euler formula, Euler ने एक फॉर्मूला दिया था. Euler is the scientist which geometry. Next one is the Euler formula. What is the Euler formula? If F denotes the number of faces, E denotes the number of edges, and V denotes the number of vertices, then by the Euler formula, E plus 2 is equal to F plus V, or you may say F plus V minus E is equal to 2. This is known as the Euler formula. कि भाई number of faces plus number of vertices is always equal to number of faces plus 2. Number of faces plus number of vertices is always equal to number of faces plus 2. तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, number of faces plus number of vertices minus number of edges.
and it gives 2. So this is the Euler formula, and we can use to calculate when any one of the two is given and the third can be calculated. आपको फेस नंबर ऑफ फेसेस फाइंड करने हैं, वर्टेक्स और एजेस गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट. आपको नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड करनी है, फेसेस और एजेस पता है तो वी कैन फाइंड आउट. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. Let us take an example of the cuboid. The cuboid we have 1 2 3 4 5 6 7 and 8 corners. So vertices कितने हो गए? 8 vertex. And how many edges? Edge कितनी है? Edges कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 edges है हमारे पास. And how many faces we have? Let us find out how many faces we have, then calculate again. Okay, so now Euler formula. Euler formula क्या है? V plus F is equal to E plus 2. हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. सो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है यहाँ पर? 8. नंबर ऑफ फेसेस हमें फाइंड करने हैं. नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 12 plus 2. नाउ नंबर ऑफ फेसेस कितने आ गए? 12 plus 2 14 minus 8 is equal to 6. नाउ लेट अस कैलकुलेट अगेन. हमने कैलकुलेट तो किया बट फेसेस यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. एक फेस टॉप, एक फेस बॉटम, एक फेस फ्रंट, थर्ड फेस फ्रंट, फोर्थ फेस बैक एंड, फिफ्थ फेस साइड 1, सिक्स्थ फेस साइड नंबर 2. So we have 6 different sides. So yes, this formula is true. आप यहाँ पर किसी भी शेप के अंदर कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई 2 वैल्यूज गिवन है तो थर्ड वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ Euler formula. Let us discuss another example. Let us take an example of square pyramid. In the case of square pyramid, how would it look like? एक स्क्वायर शेप बनाइए, ठीक है. इसके ऊपर डिफरेंट ट्रायंगल्स बना दीजिए और सभी ट्रायंगल्स को एक जगह मर्ज कर दीजिए. कॉमन पॉइंट पर सभी को मिला दीजिए. Now this become a square pyramid. पिरामिड में क्या होता है? जो साइड्स होती हैं वो ट्रायंगल की बनी होती है. जो बेस होता है इट मे बी ऑफ एनी पॉलीगन. ये तो एक पॉलीगन होगा और जो भी साइड्स होंगी वो ट्रायंगल होंगी और एक कॉमन वर्टेक्स से सारी ट्रायंगल जुड़ी होंगी. वो एक पिरामिड होगा. तो अब इस पिरामिड को हम एक स्क्वायर पिरामिड को यूज करते हैं टू वेरीफाई Euler फॉर्मूला अगेन. सो यहाँ पर फेसेस कितने हैं हमारे पास? फेसेस कितने हो गए? 1 एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, नीचे 3 ट्रायंगल, यानी 4 ट्रायंगल, 4 और एक नीचे 5. वी हैव 5 डिफरेंट फेसेस. 4 ट्रायंगल्स के फेस हो गए, एक नीचे. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी वर्टेक्स इट हैज? वर्टेक्स कितने हो गए? 4 वर्टेक्स तो नीचे दिख रहे हैं, एक वर्टेक्स कॉमन ऊपर है, तो इसमें वर्टेक्स भी कितने हैं? 5. नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? 1 2 3 4 तो नीचे है, 4 ही ऊपर है, 8. सो नाउ बाय Euler फॉर्मूला, और Euler फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? Euler फॉर्मूले से होता है कि जो दो फेस और वर्टेक्स का सम है
उसका किसके इक्वल होगा, फेस और वर्टेक्स के सब का वैल्यू होगा e+2 के। सो इस एलर फॉर्मूला से हम क्या बनाएंगे, से हम चेक करते हैं पहले f+v इक्वल टू e+2 है नहीं, यहां पुट कीजिए f की वैल्यू 5, v की वैल्यू 5, h की वैल्यू 8 एंड +2। तो क्या इन सब का सम बोथ साइड में 10 आ रहा है, और बोथ साइड में 10 आ रहा है तो देन इट इज वेरीफाइड। वेरीफाई एलर फॉर्मूला फॉर स्क्वायर पैरामीटर। आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको वेरीफाई करना है, अब इसमें फाइंड नहीं करना है कुछ, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो आपको इसी तरह से तीनों चीज फेस, वर्टेक्स और एज निकालना है। क्लियर? अब उसको हम फिर से एलर फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमें एलर फॉर्मूला लिखना होगा और उसके अंदर सारी वैल्यूज को जो हमने फाइंड किए उन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। इफ बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो हमारे क्या होगा, ये वेरीफाइड होगा। क्लियर? Now let us discuss the pyramid versus prism. प्रिज्म कैसा होता है और पिरामिड कैसा होता है, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सो प्रिज्म और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। अब आप एक प्रिज्म को देखेंगे तो प्रिज्म की सारी जो लेटरल सरफेस होती है, लेटरल सरफेस क्या होती है, जो साइड वाली होती है। पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। आपने प्रिज्म घरों में बहुत से प्रिज्म देखे होंगे, स्कूल में प्रिज्म देखे होंगे। स्कूल में प्रिज्म देखे होंगे, घरों में प्रिज्म देखे होंगे। तो प्रिज्म में क्या खासियत होती है और प्रिज्म कैसा दिखता है। तो प्रिज्म में जो साइड की जो ये शेप होगी, ये इसे बोलते हैं लेटरल। जितने भी यहाँ पर शेप्स आएंगी, जो रेक्टेंगुलर शेप आ रही है या कैसे भी, ये सब हमारे पास रेक्टेंगुलर नहीं है, ये सब हमारे पास क्या होगी, पैरेललोग्राम शेप्स, पैरेललोग्राम्स शेप होगी। और यहाँ पर जो शेप होगी, इट मे बी ए ट्रायंगल, मे बी ए स्क्वायर, मे बी ए डिफरेंट, मे बी पेंटागन, मे बी ऑफ एनी शेप, मे बी हेक्सागन, कैसी भी शेप हो सकती है। तो ये जो प्रिज्म बनेगा वो इस शेप के नाम से बनेगा। यहाँ पर ये ट्रायंगल है ना, तो ये पॉलीगन होगा, तो इस पॉलीगन की शेप के नाम से ही प्रिज्म का नाम बनेगा। अब ये यहाँ पर ट्रायंगल की शेप है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। यहाँ पर ये हमने स्क्वायर बना दिया और फिर हमने यहाँ पर सारे प्रिज्म इस तरह से बनाए, सभी शेप्स को मिलाते चले गए, तो ये जो बनेगा एक स्क्वायर प्रिज्म बनेगा। हमने यहाँ पर एक पेंटागन बना दिया और इसको फिर इसी तरह से दूसरे पेंटागन। और सबसे बड़ी बात, ये जो दोनों शेप होंगी, ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगी। बोथ द ट्रायंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट। और इसमें यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर शेप ही होगी। इसमें भी क्या है, ये दो पेंटागन बनाए, इन दोनों पेंटागन को आप सभी कॉर्नर को मिला दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक प्रिज्म बनेगा। अब इसका नाम क्या होगा, पेंटागन प्रिज्म, हेक्सागन प्रिज्म, 6 होगी तो हेक्सागन प्रिज्म, एंड देन सो ऑन। तो जो भी होगा, यहां पर तो दो डिफरेंट पॉलीगन्स हो सकते हैं। और जो ये शेप होगी, ये लैटरल फेसेस बोलते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, लैटरल फेसेस। ठीक है, कर्व में जो आ रही है, इसकी साइड से जो जा रहा है, इसे बोलेंगे लैटरल फेसेस। तो जितने भी फेसेस ये पढ़ते हैं, ये सभी क्या होंगे, पैरेललोग्राम्स। इसमें 4 हैं तो चारों पैरेललोग्राम, इसमें 3 है तो तीनों पैरेललोग्राम, ये भी सारे पैरेललोग्राम्स। ये सभी पैरेललोग्राम्स की शेप बनाएंगे। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है। बट इन द केस ऑफ पिरामिड, पिरामिड में एक डिफरेंट शेप आ गई, जिसका बेस कुछ भी हो सकता है, बट इसका बेस एक, जैसे सपोज को हमने ट्रायंगल बना दिया और ऊपर से हमने पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को हमने इन सबसे मिला दिया,
तो जो बेस होगा वो एक पॉलीगन होगा। यहां पर इसकी साइड्स पे ये दोनों साइड्स पॉलीगन थी, इसमें बेस पॉलीगन होगा, ये कॉमन वर्टेक्स होगा। और जितने भी ये साइड्स है, इसकी लेटरल साइड्स है, जैसे इसकी जो लेटरल फेसेस थे इसी तरह इसके लेटरल जो फेसेस हैं, यहाँ पे पैरेललोग्राम थे, यहाँ पर ये ट्रायंगल ही होंगे, यहाँ पर ये क्या होंगे, ट्रायंगल ही होंगे। और ईच एंड एवरी ट्रायंगल इज attached to the common vertex, then this is known as the pyramid। अब इस पिरामिड का नाम इस पॉलीगन के नाम से होगा। यहां पर हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया। इस स्क्वायर को हमने एक वर्टेक्स से मिलाया, नाउ दिस बिकम्स, इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, कैसा भी हो सकता है, जैसा हम बनाएंगे वैसा बनेगा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, यहाँ हमने पेंटागन बनाया और फिर उस पेंटागन को अगर हम मिलाते हैं एक पॉइंट से, तो ये बन जाएगा हमारे पास पेंटागन पिरामिड। तो इस पिरामिड का नाम किस पे हो गया, इस पॉलीगन के नाम से। तो आपने देख लिया है कि ये जो शेप बनेगी, इस तरह की जो शेप बनेगी वो प्रिज्म होगी, और इस तरह की जो शेप बनेगी वो हमारी क्या होगी, पिरामिड होगी। सो इस तरह की आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और आपको सभी टाइप की शेप्स को डिस्कस करना है, स्टडी करना है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लेटोनिक सॉलिड्स। डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। सो प्लेटोनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं। अब ये क्या होते हैं, रेगुलर कन्वेक्स पॉलीहेड्रन होते हैं। These are the regular convex polyhedron। ये रेगुलर कन्वेक्स यानी इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल शेप्स की होंगी, और नॉन एज प्लेटोनिक सॉलिड्स। ठीक है। सो नाउ देयर आर ओनली 5 टाइप ऑफ प्लेटोनिक सॉलिड्स। सो फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन आपने देखा था, जिसके अंदर हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल को, ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होता है एक तरह से हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल सकते हैं, उसको एक कॉमन वर्टेक्स से मिला देते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास ट्रायंगुलर हेड्रॉन। सो ट्रायंगुलर हेड्रॉन इज जस्ट लाइक ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट वन इज द क्यूब। क्यूब भी हम एक प्लेटोनिक सॉलिड बोलते हैं, बिकॉज क्यूब में भी सारी साइडें क्या हो जाती है, इक्वल। बस इस जो हमारे पास प्रिज्म था ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसकी सभी साइड्स बराबर होगी। जैसा नीचे वाला प्रिज्म है, ट्रायंगल है, वैसे ही साइड वाले ट्रायंगल होंगे, ऑल ट्रायंगल ऑफ सेम शेप। इसी तरह इसमें भी ऑल साइड फेसेस आर ऑफ सेम। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब। और क्यूब भी क्या है, प्लेटोनिक सॉलिड है। नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन में भी सभी शेप क्या जाएंगी, एग्जैक्टली सेम। आप ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रॉन बनाने के लिए हमने जो सबसे पहले लिया था, एक शेप बनाई थी, एक पॉइंट लीजिए, इसे मिला दीजिए, एक पॉइंट पीछे लीजिए, इससे भी मिला दीजिए। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रॉन। नेक्स्ट वन इज आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन एक कॉम्प्लेक्स शेप है जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे, आइकोसाहेड्रॉन में वर्टेक्स होते हैं 20, और इसके अंदर फेसेस कितने होंगे, सॉरी आइकोसाहेड्रॉन में फेसेस वर्टेक्स होंगे 12 और फेसेस होंगे 20, और इसके अंदर एजेस कितनी होंगी, एजेस होंगी 30। और इसकी बिल्कुल इसी के जैसे मिलता जुलता हमारा दूसरा होता है डोडेकाहेड्रॉन।
इस डोडेकाहेड्रॉन में हमारे पास फेसेस कितने होंगे 12, यानी कि वर्टेक्स इसके अंदर कितने होंगे, वर्टेक्स होंगे इसके अंदर 20 और फेसेस कितने होंगे 12 और एजेस कितनी होंगी इसके अंदर भी 30। तो इसके अंदर भी एजेस कितनी हुई 30, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल। सो इट इज नॉट विजिबल, आई एम राइटिंग इट हियर। सो डोडेकाहेड्रॉन में जो वर्टेक्स होंगी वो होंगी हमारे पास 20, फेसेस जो होंगे हमारे पास वो होंगे 12 और एजेस कितनी होंगी हमारे पास 30 एज इट इज। सो इनकी फेसेस, इनकी शेप्स आप देखिए, इनकी जो शेप्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनकी शेप्स को आप अच्छे से ध्यान देंगे, इनमें ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि कितनी इनके अंदर वर्टेक्स है, कितनी एजेस है और कितनी फेसेस है। क्लियर? So that's all for the introduction of this chapter. Study this video at least twice so that you can understand all the concepts. Thank you very much.